आदाब नाज़रीन, मैं हफ्साना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एंड ग्लोबल वॉलपेपर। सीबीआई के जरिए ईसीएल के साबिक और मौजूदा जीएम समेत 7 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी की खबर से शिल्पांचल में हलचल मची हुई है। कोयला मामले में आज सीबीआई ने इन्हें आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आइंदा 18 जुलाई तक के लिए सीबीआई के हवाले किया। इनके वकील आशीष मुखर्जी ने कहा कि पिछले साल भी सीबीआई ने इनके घरों पे रेड किया था और पूछताछ की थी, मगर सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई और अब फिर से इन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसमें सियासत की दखल हो सकती है। सुभाष मित्रा, सुशांतो बनर्जी, रिंकू बेहरा, मुकेश कुमार समेत 7 को आज कोर्ट में पेश किया गया। সবাই যদি ওরকম করে ইয়ে করি আস্তে 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 গাড়ি ঢুকছে, আস্তে সব ছবি कुछ बोलेगा আপনাদের বিরুদ্ধে যে অ্যালিগেশন আপনারা কিছু বলতে চান? আপনারা কি এর সাথে যুক্ত ছিলেন? আপনারা কি যুক্ত ছিলেন? কিছু বলবেন? আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সামনে না बोलबें बोले कुछ बोलेंगे सर? आराम से कुछ बोलेंगे? সরাসরি তো বলা যায় না, অনুমান করছি। বুঝতেই পারছেন ভোটের আগে একবার করে এরকম সিবিআই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে,
সামনে রাষ্ট্রপতি ভোট, অটোমেটিক্যালি এটা হওয়ার ছিল, হয়েছে, দ্যাটস অল। অভিযোগটাই বা কি ছিল ওনাদের এগেইনস্টে? আমরা শুনলাম যে অনুপ মাঝির সঙ্গে ডিরেক্ট লিংকের কথা বলা হলো। আজকে যে আসামিদিকে প্রোডাকশন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমি 4 জনের হয়ে জামিনের আবেদন করেছিলাম। তারা হলেন সুভাষ মৈত্র, সুশান্ত ব্যানার্জি, রিঙ্কু বেহেরা এবং আরেকজন ছিলেন মুকেশ কুমার। এছাড়া আরও যে 3 জন ছিলেন তাদের হয়ে অন্য উকিলবাবু ছিলেন। দুটা কথা যেটা আমরা দেখলাম, এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো ইনক্রিমিনেটিং মেটেরিয়ালস যাতে করে প্রমাণিত হয় এরা ইলিগাল মাইনিংয়ের সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত, এ ধরনের কিছু সিবিআই খুঁজে বার করতে পারেননি। জুলাই মাসে গত বছর এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিসে রেড হয়েছিল, সার্চ সিজার হয়েছিল, সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্ট কালেক্ট করা হয়েছিল। সেখানে এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হিসাব সিবিআই দাখিল করতে পারেনি, যা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে এরা ইলিগাল মাইনিং থেকে কোনোভাবে অবৈধ পয়সা নিয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন ম্যাটারটা এখন অন্যদিকে চলে গেছে, যেহেতু এটা একটা হাই প্রোফাইল মামলা, কিছু রাজনৈতিক রঙও আছে, যে কারণে এনাদিকে আবার অ্যারেস্ট করা হলো। আজকে যেটা সিবিআইয়ের পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, তারা অনুমান করছেন এনারা অনুপ মাঝির কাছ থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিয়েছেন। সেই কোটি টাকাটা তারা কবে, কোথায়, কিভাবে নিয়েছেন এবং কোথায় রেখেছেন সেটাকে খুঁজে বার করার জন্য জেরা করবেন। অথচ 1 বছর হয়ে গেল, যাবতীয় সার্চ সিজার কমপ্লিট, রিপিটেডলি এনাদিকে জেরা করা হয়েছে, এনারা পালিয়ে যাননি। যখন যেখানে যেভাবে ডাকা হয়েছে গেছেন, কিছু উদ্ধার করা হয়নি। তা সত্ত্বেও জাস্ট করা হলো এবং 5 দিনের প্রেয়ার করা হয়েছিল সিবিআই রিমান্ডে। লানেট কোর্ট ওটাকে অ্যালাউ করেছেন। 18 তারিখে প্রোডাকশনের দিন আছে। 5 দিনে আপনারা প্রত্যেকেই জামিনের আবেদন করেছিলাম এবং রিমান্ডের আবেদনের বিরুদ্ধতাও করেছিলাম, যদিও জজ সাহেব সেটাকে কনসিডার করেননি এই মুহূর্তে ইনভেস্টিগেশনের স্টেজে। এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ সরাসরি সিবিআই দাখিল করতে পারেনি। তারা বলছে আমরা অনুমান করছি এবং এনাদের মুখ দিয়ে বার করতে চাই যে কবে টাকাটা নিয়েছিলেন, কোথায় নিয়েছিলেন, কিভাবে নিয়েছিলেন এবং কোথায় রেখেছেন। অথচ এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিস সার্চ সিজার করে কিচ্ছু উদ্ধার করা যায়নি। না, আপনারা কি বলছেন যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত? সবটা পুরোপুরি বলা ঠিক হবে না, অনুমান একটা সেরকম ধরনেরই কিছু ম্যাটার আপনারা বুঝতেই পারছেন। না, যখন আপনারা বলছেন যে কিছু পাওয়া যায়নি তারপরও অ্যারেস্ট। আমি আশিস মুখার্জি। आशीष बाबू, जब কিছুই পাওয়া যায়নি आजादी के बाद पहली बार अब रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर भी 5% जीएसटी लगने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया है। एक तो महंगाई, उस पर आम जनता पर और बोझ, ये काबिले कबूल नहीं। आज इसके ही खिलाफ उज़्बेकी की जानिब से डीएम को अर्ज़दाद सौंपी गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी मजम्मत की गई। तंजीम की जानिब से आरपी खैतान ने कहा कि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी और देश की बड़ी कंपनियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के मकसद से ये किया जा रहा है। अफसोस की बात है कि इस काउंसिल में मरकज के साथ साथ रियासत के भी नुमाइंदे रहते हैं। इसके बावजूद किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की। इसलिए मुल्क के तकरीबन 40,000 चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इसका एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पे सचिन राय, पवन गुटगुटिया खास तौर से मौजूद थे। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव और लिया गया है कि प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड जो खाद्य सामग्री है उसके ऊपर 5% जीएसटी धार्य होगा, लगेगा। स्वाधीनता के बाद से अभी तक जो खाद्य सामग्री थी उनको टैक्स से आउट रखा गया था, बाहर रखा गया था। टैक्स की परिधि से ये हमेशा और बिक्री कर की परिधि से बाहर था। अब ये जो प्रपोजल आया है ये बहुत ही घातक प्रपोजल आया है। मैं उदाहरण दे के आपको बताता हूँ कि ये किसके लिए घातक है ज़्यादा। दुकानदार तो अपने घर से देगा नहीं, दुकानदार तो उसके ऊपर टैक्स लगा करके बेचेगा। जैसे चीनी है, चीनी 40 रुपये किलो लगभग अमूमन बाज़ार में बिक रही है अभी। उसके ऊपर 5% माने कितना हुआ, 2 रुपया किलो। तो 40 की चीनी 42 रुपये बिकेगी। आटा क्या भाव बिक रहा है, 30 रुपये के लगभग। उसको 5% लगेगी तो कितना दाम हो गया, 31.5, 1.5 रुपया किलो वो ज़्यादा बिकेगी। तो ये क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही पहले महंगाई है और इस महंगाई के दौर के अंदर में चीज़ों को के दाम के अंदर में इस अप्रत्याशित वृद्धि जो होने जा रही है इसका बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर और आम नागरिकों पर पड़ेगा। जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर बहुत गहरा
गहरी मार पड़ेगी इससे। देखिए, हम लोगों का ये आंकलन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल्स जो कंपनी हैं, जो बाहर की और भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो घराने हैं जो इस उद्योग में हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए काम किया गया। उनके जो पहले से लेवल्ड हैं वो उस पर तो पहले से टैक्स था। अब ये जो छोटे और मझोले ग्रेड के जो उद्योग हैं इस व्यवसाय में, ये उनको एट पार लाने के लिए और ये टैक्स लिया गया है, ये टैक्स लगाने की प्लानिंग है। तो इसका मतलब ये होगा कि मल्टीनेशनल, यहाँ के बड़े घराने और हमारी जो ये जो मझोली और छोटी कंपनियां हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो सब भी एक एट पार आ जाएंगी और उनका माल एक साथ एक ही दर में बिकेगा। ऐसा कभी संभव है? कभी हम लोग उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं हमारे व्यापारी भाई? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो ये बहुत गहरी चाल है। बड़े कंपनियों ने सरकार को किस हिसाब से कन्विंस किया है हमें मालूम नहीं, परंतु उन्होंने लगातार, वो लोग कन्विंस कर रहे थे। हम लोगों के पास खबर आ रही थी कि वो लोग लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि जो आप ये समझिए कि जो एक आटा चक्की लगा रखा है, बात समझिए आप, आटा चक्की 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो माल को पैक कर दिया है, ठीक है, और माल को पैक करके उसके ऊपर एक अपना मार्का भी दे दिया है। वो बाजार में बेचारा घूम घूम के जाके बेचता भी है, माल का कलेक्शन भी करता है, डिलीवरी भी देता है, उसका बच्चा है, लड़का है, वो लोग मिल करके उस काम को चलाते हैं, उसका परिवार है, ऐसे ही चलता है। अब उसके ऊपर में यदि ये टैक्स लगाएंगे तो माल तो उसका जो बड़ी कंपनियों के जो रेट है उसके साथ हो गया, तो कौन लेगा उसका माल? इसका माल इसलिए बिकता था कि ये थोड़ा सस्ता था, क्वालिटी माल बनाता था, सस्ता देता था, इसलिए ये माल चलता था। तो ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। सारे देश के अंदर में इसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं। सारे देश के जितनी 40,000 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लगभग जो हैं 8.5 करोड़ व्यापारी हैं, उन सब के ने मिल करके इसका प्रतिवाद करने का फैसला किया है। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, ये इस तरह के सारे मंत्रियों के साथ उन लोगों ने मीटिंग की है। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं गोयल साहब, उनसे भी मुलाकात की है। उन सबको इस बात की गंभीरता का एहसास कराया है। उन लोगों ने सब ने कहा हम देखते हैं। लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें खाली केंद्र सरकार को दोष देने से नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल के अंदर में देश के हर राज्यों का जो वित्त मंत्री है वो उसमें सदस्य के रूप में शामिल है, और ये निर्णय पूरी तरह से यूनैनिमस, सर्वसम्मति से गृहीत किया गया। मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें साय है, साथ है, इशारा है, तब न लगा है ये। अगर आज बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री विरोध किए होते तो ये नहीं लगता होगा कि वहाँ विरोध हो जाता। लेकिन सर्वसम्मति से गृहीत निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने जहाँ केंद्रीय सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है, वहीं हम लोगों ने हमारे देश की, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री साहिबा, हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे राज्य के वित्त मंत्री, हमारे राज्य के चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब को भी हम लोगों ने मेमोरेंडम प्रेषित किया है। हम लोगों ने माने सिर्फ फौजबेकी नहीं, बाकी सारे फौजबेकी के एपेक्स बॉडी जितने, फौजबेकी तो 11 जिलों की सर्वोच्च संस्था है, एपेक्स बॉडी है, इसके अंदर में 70-80 संगठन हैं। उन सब ने इसका विरोध करते हुए सरकार को अपना मेमोरेंडम ईमेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रेषित ऑलरेडी कर दिया है। नेतृत्वे से आसानसोल এই ডিস্ট্রিক্টে যত সংগঠন সমস্ত কিছু যে চেম্বার অফ কমার্স সবাই সহমত হয়েছে। সেখানে 2-4 জন কম বা বেশি সেটা ফ্যাক্টর নাই, কিন্তু তাদের প্রতিনিধি প্রত্যেকে এখানে এসছেন এবং এখানে পার্টিসিপেট করেছে। অতএব এখানে আমাদের মধ্যে সব এক আছি। আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্বাধীনতার পরে 75 বছর স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করতে চলেছি, সেখানে আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে জনগণকে কিছু সুরাহা দেওয়া, কিছু সুবিধা দেওয়া। তার পরিবর্তে আমরা কি পেতে যাচ্ছি না, খাবার জন্য যেগুলো লস্যি
যেগুলো দই কি এইসব খাবার যেগুলো গরিব মানুষরা ব্যবহার করে, বাটার মিল, এইগুলোর উপরে জিএসটি আছে, যেটা আজ পর্যন্ত কোনোদিন এর উপরে জিএসটি বা কোনো ট্যাক্স ছিল না, না কোনো সার্ভিস ট্যাক্স, না কোনো জিএসটি, না কোনো ট্যাক্সের কে ছিল না। আমরা আশা করব সবসময় যে এই সমস্ত খাদ্যগুলোকে তার ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখা, তা না করে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট যাই বলুন, জিএসটি কাউন্সিল এটা করেছে, এখানে সবাই ইনভলভ আছে, সব স্টেট সেখানে আছে, প্রতিনিধি আছে সেখানে। অতএব আমরা এটা প্রতিবাদ করছি এবং সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ হচ্ছে। আমাদের যেটা অর্গানাইজেশন আছে ক্যাট, তারা প্রতিবাদ করছেন, তারা আপনি শুনলেন সমস্ত ফাইন্যান্স মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার সবার সঙ্গে তারা দেখা করেছেন যে এটাকে রিমুভ করার জন্য, এটা যেন উইথড্র করা হয়। এবার মনে হচ্ছে কি যে আমাদের মরতে গেলে মরার আগে কিন্তু জিএসটি দিয়ে যেতে হবে, কারণ হচ্ছে হসপিটালের উপরে জিএসটি কিন্তু প্রয়োগ করেছে, সেখানেও কিন্তু ছাড় পাবেন। অতএব আমরা এই স্বাধীনতা দিবস যেখানে সেলিব্রেশন হতে যাচ্ছে 75 ইয়ার্স, সেখানে আমরা আবেদন করছি, আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আমরা সেন্ট্রাল মিনিস্টারের কাছে সে আবেদন পৌঁছে দেওয়ার করে এলাম, সেটা নিশ্চয়ই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আমরা আশা করব যে জিএসটি যেগুলো সমস্ত উপরে लागू হয়েছে সেগুলো উইথড্র করা হবে। आपने दही का जिक्र किया, इसके अलावा और कौन कौन सी सामग्री है जिन पे जीएसटी? अरे खाने का सब सामग्री पर लग गया ना, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दही, फही, सब मट्ठा और छाछ, सब सभी चीज पर तो लग गया। देखिए कोविड में सबसे सफरर हुआ टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्रीज। जो गरीब लोग जो 1000 का नीचे जो जीएसटी फ्री था, 1000 का नीचे जो होटल रेंट, उसका ऊपर भी 12% लागू हो गया जीएसटी। खाना का तो छोड़िए, सब में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है ना कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है और सरकार जो है हमेशा दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इससे आम आदमी इफेक्टेड हो रहे हैं। गरीब आदमी जिसके लिए सरकार कहती है कि नहीं भाई हम गरीब को चावल मुफ्त में देते हैं, तो उस जगह पर ये टैक्स लगाना भी तो कहीं ना कहीं एक अन्याय है, मैं समझता हूँ। एक जोर जबरदस्ती वाली बात है कि भाई आप एक तरफ उनको आप फ्री में चावल देते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे टैक्स वसूली करेंगे। पंचायत इलाका हुआ और बेसी दिक्कत है। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसुसोल। कॉल करें 9883802437 पर। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर,
वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज से जारी हुआ नो मास्क नो एंट्री। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कल ही मीटिंग के जरिए ये फैसला लिया गया था कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नो मास्क नो एंट्री लागू होगा। उसी को अमली जामा पहनाते हुए आज बगैर मास्क के लोगों को दाखिल होने नहीं दिया गया। Good morning. দেখুন আমরা গতকাল এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি যে নো মাস্ক নো এন্ট্রি এবং যেখানে কোভিডটা আস্তে আস্তে বাড়ছে বিভিন্ন জায়গায় তো যাতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় না পৌঁছে যায় তার জন্য আমরা সকল মানুষকে সচেতনতার জন্য এই বাধ্যতামূলকটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আর আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্যানিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করেছি, সাফাইয়ের ব্যবস্থা করেছি এবং অ্যাওয়ারনেসের ব্যবস্থা করেছি। আমরা মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করছি, সব জায়গায় বলে বেড়ানো হচ্ছে কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, দূরত্ব বজায় রাখুন যাতে এই কোভিডটা না ছড়িয়ে যায় এবং মানুষের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। ভুলবশত যদি মানে কর্পোরেশনে চলে এসেছে তার কাছে মাস্ক নেই তো আপনারা কর্পোরেশন থেকে মাস্ক দেওয়া হবে এবং কর্পোরেশন তাকে কর্পোরেশনের কম্পাউন্ডের ভেতরে
যাতে না ঢোকে তার জন্য অনুরোধ করা হবে। চেম্বার অফ কমার্স যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে কিরকম কি লাগছে এবং ওনাদেরকে কি বলবেন? এটা খুবই ভালো লাগছে এবং এইভাবে যদি আমাদের হসপিটালকে চেম্বার অফ কমার্স সাহায্য করে তাহলে আশা করছি আরও আগের দিনে আমাদের হসপিটাল আরও অনেক ভালো জায়গাতে যাবে বা আরও হসপিটাল আরও ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। এবং এটার জন্য আমি আমার পার্সোনালি এবং বিহাফ অফ নিউজ আমি ওনাদেরকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আপনার নাম এবং ডেজিগনেশনটা বলুন। আমি ডক্টর পিয়ালি সাহা, सेकेंड डेमो कॉमर्स की तरफ से आज रानीगंज जो आलूगढ़ी हॉस्पिटल है, प्राथमिक हॉस्पिटल, इसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग? 2-3 दिन पहले हमारे बीओएमएस सर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स विजिट किए थे। उन्होंने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ भी CSR एक्टिविटी के रूप में बीओएमएच ऑफिस में हम लोग कुछ काम करवाए। तो पहला रिक्वायरमेंट मुझे नेपाल जाके थ्रू पता चला कि यहाँ की जो टैंक्स वगैरह है काफ़ी गंदे हो चुके हैं और वो क्लीनिंग मानते हैं नेचुरल वे में। और हमने श्यामल टैंक क्लीनिंग जो दुर्गापुर की कंपनी है उससे कांटेक्ट किया और उनको ये ठेका दिया। यहाँ जितनी भी टैंक्स है ये हॉस्पिटल एवं बीओएमएच में सबको वो क्लीन करेगा और ये रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होगा। लगभग कितना वाटर टैंक है आपको पता चला? यहाँ पे लगभग 4-5 वाटर टैंक्स है जो सारे टैंक्स हमारे क्लीन हो जाएंगे आज ही। और मैं हमारे बीओएमएच के तरफ से डॉक्टर प्याली मैम उपस्थित है, मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।